Request now President, Vice President Mundraji, all to come on the dais and take the seat, please. Friends, जैसे कोरोना के बाद इंडस्ट्री अभी स्लो एंड स्टेडीली इज कमिंग अप और अभी फिर से वी आर कमिंग विद सीरीज ऑफ सेमिनार्स लाइक अभी नेक्स्ट वीक टेक्सटाइल वीक भी आ रहा है जिसमें बहुत सारे सेमिनार हैं और पान साहब का ये जो सेमिनार है polyester road ahead. Among the different synthetic fiber like nylon, polyester, acrylic, acetate, polyester fiber has proved as the best fiber. Polyester staple and yarn production is increasing day by day in India and world as well. The subject or title polyester the road ahead is selected by Pansar is in real sense the fiber which is driving the textile industry since 1941. Almost now 80 years has passed since its invention. It has surpassed use in quantity compared to all natural fiber like cotton, silk and man-made fibers too. As such, it is a fiber for mass, and without it all our garment price would have been twice or thrice. Sorry. મુન્દ્રાજીને એમ કેવું છે ગુજરાતીમાં બોલો ઇંગ્લિશ તો ઓફકોર્સ આઈ એમ ઓલ્સો ગુજરાતી તો પોલિએસ્ટર વગર જે આપણા કાપડના પ્રાઇસીસ છે એ એટલીસ્ટ ડબલ કે ટ્રિપલ હોત. પોલિએસ્ટરનું ઇન્વેન્શન એ બ્લેસિંગ્સ છે ફોર ઓલ ધ મેનકાઇન્ડ અને એ બાબતમાં વધારે પ્રકાશ પાડશે અમારા પાન સાહેબ. હી ઇઝ ધ અસિસ્ટન્ટ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. નાઉ ટુ સ્ટાર્ટ વિથ આઈ રિક્વેસ્ટ શ્રી હિમાંશુ ગોડાવાલા ટુ ગીવ ધ our president of the SGCCI to give the welcome address. Thank you. Good evening, everybody. Our today's prestigious guest and keynote speaker, Sri Asim Pan sir, Assistant Vice President, Reliance Industries. My colleague, Mr. Ramesh Bhai Vagasia, Vice President. Immediate past President, Ashish Gujarati. Mundraji, my friend, philosopher guide, GFRRC chairman, Yarn exhibition chairman. Our worthy past president, Sri Mahendra Bhai Kajiwala, Sri Praful Bhai Shah, co-chairman, GFRRC, Umesh Bhai Kisnani. Friends, it is said that the global trade of textile and apparel stood at $871 billion in 2021. With a significant increase of 22% post-COVID. Approximately 49%, that is USD 427 billion of the global trade comes from man-made fiber and is growing at a CAGR of 3.7% since 2010. In 2021, MMF-based apparel stood at $237 billion, growing at a CAGR of 4.6 billion, while cotton-based apparel stood at $207 billion. MMF-based fabrics, being the second largest category, stood at $69 billion, growing at a CAGR of 3.4% during the same period. As per the projection made by the Wazir Advisor globally, polyester fiber will have 59% market share by the year 2030. Currently, India has an installed polyester capacity of more than 700 KTPA, which is estimated to grow annually by CAGR 3.3% and reach 8,245 million tons in the next 3 years. The polyester capacity will continue to rise even to match the fast-growing demand of the polyester fiber. Recently, world is focusing more on the sustainability aspect of almost everything which we use on day-to-day basis. As MMF textiles are manufactured using fossil fuels and are not easily biodegradable, globally, due to sustainability activism,
we may see some changes in the way the polyester is produced and used. Polyester fibers are now starting to be produced from post-consumer and post-industrial recycled materials. Companies are also working hard to invent enzymes that are capable of completely decomposing synthetic materials without leaving any traces. A recent found enzyme called polyester hydrolase PHL7 was able to decompose polyethylene terephthalate PET by 90% in less than 16 hours. Going forward, I see formidable challenges is the concern of sustainability which may affect the growth of the industry. Reliance Industry Limited, which is India's largest polyester manufacturer, whose chairman is Sri Mukesh Bhai Ambani, has recently announced its plan to invest 75,000 crores in its petrochemical and textile business over the next 5 years to expand capacity in existing and new value chain. Friends, we have with us Mr. Ashim Pan, Assistant Vice President of Reliance Industries with us, who shall discuss with us the future of polyester with us. Let's first of all have a round of applause for Mr. Ashim Pan for their valuable presence. So friends, I welcome you all on this seminar, Polyester, the Road Ahead, and I am sure you will get something new. You will get to know something new from the Mr. Ashim Panji, and I welcome you all. Thank you very much. હિમાંશુભાઈ પોલિએસ્ટરનો એટલો બધો પરિચય આપી દીધો કે પાન સાહેબને હવે રિવ્યુ કરવું પડશે વોટ ટુ સ્પીક. So to go ahead with this, I request again Himanshu Bhai to felicitate, to honor our esteemed speaker Pan Sahab. सर एक मुझे आपको बताना है, ये जो बुके है ना, हमने इस साल फैब्रिक का बुके चला ब्रांडिंग ऑफ टेक्सटाइल और આપણે છે ને ફેબ્રિકના બુકે બી આપશે. Now to go ahead with, I request our group chairman of GFRRC, Sri Girdhar Gopal Mundra ji. Mundra ji एक फेवरेट लीडर है, मतलब ही इज द ओनली पर्सन जिसकी स्पीच के बाद लोग हैप्पी मूड में आ जाते हैं. एंड आई एम श्योर दिस टाइम ऑल्सो मुंद्रा जी को ऐसी शायरी बताएंगे जिससे कि जो ऑडियंस है दे विल बी वेरी हैप्पी टू सिट हियर. थैंक यू. कृष्णाजी साहब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे लाडले प्रेसिडेंट श्री हिमांशु भाई बुढ़ावाला, आज रिलायंस के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट श्री असीम पान साहब, महेंद्र भाई, प्रफुल्ल भाई, आईपीपी आशीष जी, वाइस प्रेसिडेंट रमेश जी, भावेश जी, व मंच पर उपस्थित विशिष्ट मेहमानगण, उद्योग जगत से पधारे हुए आप सभी उद्योग व्यापारी भाइयों, बहुत खुशी की बात है. सर्वप्रथम तो मैं असीम पान साहब का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इतना आपका शेड्यूल पैक था. 16-17 को आपको बॉम्बे जाना है, सब प्री शेड्यूल नक्की थे, कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी. मैंने उनसे फ़ोन किया 4 दिन पहले, मैंने कहा आपको 5 साल हो गए और इंडस्ट्रीज़ को गाइडेंस आपकी तरफ से 5 साल से नहीं मिल पाया है. तो मेरा मन है कि बॉम्बे जाने के पहले एक बार इंडस्ट्री को आप गाइडेंस दें, पर्टिकुलर इस दौर में जहां मंदी का एहसास हम सब लोग कर रहे हैं. वहीं यदि आप आएंगे और इंडस्ट्री को गाइड करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग मोटिवेट होंगे. मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी बात को स्वीकार किया, यहाँ पर आज हमारे बीच में उपस्थित है. जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से आप उनका स्वागत करें.
बंधुओं, आज GFRRC के द्वारा पॉलिस्टर पर सेमिनार पॉलिस्टर द रोड अहेड का आयोजन किया है। ग्लोबली पॉलिस्टर यान से बने फैब्रिक्स की डिमांड बहुत है। इस अवसर पर हमारे बीच में बिगेस्ट यान प्रोड्यूसर कंपनी रिलायंस के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट पान साहब उपस्थित हैं। वे पॉलिस्टर फैब्रिक्स की हमें डिटेल जानकारी देंगे और इसका लाभ हम सब लोग जरूर लेंगे। GFRRC की एक्टिविटी का एक लाइन में आपको बता दूं, मैं उद्देश्य हमारा यही है कि टेक्सटाइल की ब्रांड इमेज ग्लोबली कैसे बने। इसके लिए हम विभिन्न ढंग के प्रोग्राम सेमिनार्स का आयोजन करते हैं, यान का एग्जीबिशन करते हैं, टेक्सटाइल वीक करते हैं और यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी व अन्य मशीनरी इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है तथा फैशन शो का भी हम आयोजन करते हैं। चूंकि आज के दौर में महंगे कपड़े जैसे प्योर सिल्क, प्योर वूल, प्योर लिनन, एक्रेलिक, कॉटन एंड शिनाइल और अन्य महंगे यानों से बने फैब्रिक्स की डिमांड तो बहुत है, पर ये आम लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। ये महंगे टेक्सचर व फील फॉल वाले फैब्रिक्स अब पॉलिस्टर यान से बनने लगे हैं। जैसे आर्ट सिल्क के नाम से साड़ियाँ, लिनन लुक की जगह जैकेट्स, माइक्रो यान से बने शूटिंग शर्टिंग सभी पॉलिस्टर धागे से बन रहे हैं। कॉटन की जगह पॉलिस्टर यान से बने सोफे, कुर्सियाँ, ऑटोमोबाइल्स व इंटीरियर आदि में पॉलिस्टर यान से बने फैब्रिक्स का यूज हो रहा है। पॉलिस्टर यान का तो इतना यूज है, हमारे जो वक्ता हैं विशेषज्ञ वो उसके बारे में बताएंगे। मैं तो जो लिखा हुआ है वो पढ़ रहा हूँ आपके सामने, प्रैक्टिकल तो वो आपको बताएंगे। हाँ, मैं आज ये कहना चाहूँगा पान साहब, आपका जो आपका इस मंदी के इस दौर में जो आपके पिटारे में जो विशेष आइटम रखे हुए हैं, उन पिटारों को आज आप उनकी जो है खुशबू आप हमारे व्यापारियों के बीच में फैलाइए ताकि उसकी महक मंदी के दौर को खत्म करे। वह नए नए आइटम बनाने के लिए हम लोग प्रेरित हों, यही मैं निवेदन करूंगा। क्योंकि आइटम तो इतने हैं कि हम गिना इसको अगर पढ़ना चालू करेंगे तो 1 घंटा लगेगा, इसलिए मैं अधिक आइटम की गिनती नहीं करना चाह रहा हूँ। पॉलिस्टर यान का बाजार आप देखिए, पॉलिस्टर यान की ग्रोथ कितनी तेजी से बढ़ी है। 2018 में लगभग 60,000 मीट्रिक टन पर मंथ इसका कंजम्पशन था, आज लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन पर मंथ से ऊपर हो गया है। ये पॉलिस्टर ग्रोथ की हमको एक उसका वो मिल रहा है कि भाई किस ढंग से पॉलिस्टर का यूज हो रहा है। वर्ल्ड के जो फैशन मार्केट है वहाँ कोई भी फैशन का फैब्रिक्स बिना पॉलिस्टर का नहीं बनता है और इसके लिए रिलायंस के हम बहुत आभारी हैं कि पॉलिस्टर यान को बनाने में रिलायंस इंडस्ट्रीज का बहुत योगदान है, जो समय समय पर अलग अलग टाइप के यान मार्केट में इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के श्री असीम पान साहब आज व्यूअर्स को नए पॉलिस्टर यान से फैब्रिक्स बनाने के लिए यान की क्वालिटीज के बारे में जरूर बताएंगे कि हम इन विभिन्न प्रकार के यान से किस प्रकार के फैब्रिक्स बना सकते हैं। इन कपड़ों को हम पुरानी व आधुनिक मशीनों में भी कैसे बना सकते हैं, यह सब जानकारी आदरणीय पान साहब देंगे। चूंकि हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर ने जो टारगेट रखा है 2030 तक $100 बिलियन एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य, जो अभी $44 बिलियन है, और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, वो कब होगा? जब हम नए नए इनोवेशन क्रिएशन के साथ अपने आइटम को बनाएंगे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो बोलते हैं कि यदि हमें वर्ल्ड लीडर बनना है तो हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगी। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? जब इनोवेशन लाएंगे, क्रिएशन लाएंगे, नई डिमांड आएगी। अभी डिस्कशन चल रहा था, बड़े अच्छे ढंग से आप लोग बात कर रहे थे। तो ये सब बातें जब तक चर्चा के रूप में सबके बीच में नहीं फैलेगी, मैं सोचता हूँ हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, नया क्या चल रहा है, एंड प्रोडक्ट क्या चल रहा है, इसको हमें बनाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगी। जैसा कि कृष्णा जी साहब ने कहा है, वो मैं बात को पूरी कर रहा हूं कि ख्वाहिशों के फूल झोली में नहीं गिरा करते हैं, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कोसने से कुछ नहीं होगा, अंधेरे को अपने हिस्से के दीपक को खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से के दीपक को खुद ही जलाना होगा। पुनः आपका आभार, धन्यवाद। थैंक यू मनोज जी। वैसे तो डायस पे जितने हैं मेजोरिटी टेक्सटाइल्स कनेक्टेड हैं, प्रफुल्ल भाई, महेंद्र भाई काजोवाला, आशीष भाई, एंड ऑल आर एक्सपर्ट इन टेक्सटाइल्स। बट जो हमारे पास प्रेसिडेंट है मिस्टर आशीष गुजराती, ही इज अ स्पेशल
नॉलेज। और नेक्स्ट टेक्सटाइल वीक में भी इनका वाटर जेट के ऊपर स्पीच है, प्रेजेंटेशन है। सो आई रिक्वेस्ट आशीष भाई टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ श्री असीम पान। थैंक यू। जरूर नहीं है, बिकॉज ही इज हियर इन सूरत सिंस लास्ट मोर देन 20 years सर। 20 साल हो गए ना। तो मिस्टर असीम पान हैज डन BTech in Textile Technology from Calcutta University and also done Executive Management Program from IIM Bangalore. He has more than 34 years of rich experience in polyester industry in different fields: sales, marketing, product development, technical services, supply chain management. Asim Pan is currently working with Reliance Industries as FDY business head and handling annual turnover of more than 2000 करोड़। अब ये तो मुझे उनके ऑफिस या मेरे ऑफिस से दिया गया था, लेकिन इनके बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो पान साहब जब से ये इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो सूरत के जितने भी व्यूवर्स हैं उनके वहाँ वो खुद, चाहे वो रिलायंस का यान यूज करते या नहीं करते, ही नोज ईच एंड एवरी व्यूवर बाय हिज नेम एंड बाय द नेम ऑफ द कंपनी। और सूरत में जो फिलामेंट बेस्ड फैब्रिक बनने लगे, दैट इज ड्यू टू पान साहब, बिकॉज फिलामेंट फैब्रिक का यूज वीवर के घर जाके कन्विंस करते थे कि आप ये फिलामेंट बेस्ड फैब्रिक यूज करो। तो ये फिलामेंट का जो इंडस्ट्री ग्रो हुआ है, दैट इज ऑल ड्यू टू मिस्टर पान। सो वंस अगेन वी वेलकम हिम एंड नाउ द फ्लोर इज योर्स सर। रमेश भाई, आशीष भाई, गिरधर गोपाल जी, महेंद्र भाई, कृष्णानी जी, प्रफुल्ल भाई एंड दोनों भावेश भाई, माय सिंसियर थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर अरेंजिंग दिस सेमिनार। लेकिन आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दिया मेरे बारे में। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेसिकली सूरत में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छा है। सो ग्रोथ जो हुआ है इट इज़ थैंक्स टू द एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ आप लोग सब जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए। तो काफ़ी दिन से ये, इसके पहले भी मैंने डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया था और बहुत दिन हो गया है ये प्रेजेंटेशन हुआ नहीं था। तो गिरधर जी जैसे ही बताया, मैं बोला चलो ठीक है करते हैं एक बार कैसे भी। तो इट इज़ बहुत ही शॉर्ट टाइम में बनाया। तो टॉपिक्स यही था कि द रोड अहेड पॉलिएस्टर का। हम हमेशा यही बात करते हैं कि क्या होगा, अभी आज क्या है, आगे क्या होगा। तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है इसमें हमने दो पार्ट में देख रहा है कि एक तो पॉलिएस्टर का, इंडिया पॉलिएस्टर, ऑफकोर्स हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो भारत में पॉलिएस्टर का क्या स्थिति है, आगे क्या होने वाला है, एंड अगर वो अच्छा स्थिति है, आगे अच्छा ही होने वाला है तो हमें क्या करना चाहिए। ये दो ही पार्ट में मैंने डिवाइड किया है इसको। तो टॉपिक्स रोड अहेड। तो लेट अस सी कि ये जो रास्ता है ये कंजेस्टेड रोड है या हाईवे है या एक्सप्रेसवे है। तो ये आज अगर हम फाइबर का जो ग्लोबल मार्केट देखेंगे, सारे फाइबर का, तो ग्लोबली आप देखेंगे कि मैनमेड फाइबर जो है उसका 75% शेयर है, कॉटन का 24% है, ऊन का 1% है। अब यही चीज देखिए इंडिया का, इंडिया में मैनमेड फाइबर का 52% शेयर है। और आज हिंदुस्तान के बाहर दुनिया में जो भी होता है वो हिंदुस्तान में आते ही है, चाहे वो 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो। देयर कैन बी टाइम लैग, कुछ समय का ये हो सकता है, लेकिन वो आएगा। सो डेफिनेटली जो मैनमेड फाइबर है 75% अगर ग्लोबली है, सारे दुनिया में है, तो 52% इंडिया में नहीं हो सकता। ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा आगे चल के। जैसा भी गिरधर जी बता रहे थे, अपना अभी $140 बिलियन का टेक्सटाइल का हमारा मार्केट जो इंडस्ट्री है, इट इज वैल्यूड एट $140 बिलियन। उसमें $100 बिलियन का डोमेस्टिक है एंड 40 से 44 बिलियन का आसपास हमारा एक्सपोर्ट है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का जो ये है वो सिनारी वो है कि उनको 250 करना है, बट नरेंद्र मोदी जी का एक ये है विजन है कि $300 बिलियन होना चाहिए बाय 2030। तो आप सोचिए कि अभी 142 से अगर $300 बिलियन करना है तो दैट मीन्स सिंपली डबल। यहां से डबल मीन्स आज का दिन में सूरत में जितना वाटर जेट है वो डबल करना पड़ेगा, जितना लूम्स है वो कैपेसिटी डबल करना पड़ेगा। जस्ट थिंक कि आज सूरत इंडस्ट्री जो 50 साल 60 साल में जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, आज आपको नेक्स्ट 8 साल के अंदर इतना ही इन्वेस्टमेंट करना है, इतना ही ग्रोथ है।
सो डेफिनेटली पॉलिएस्टर का जो ग्रोथ है, मतलब टेक्सटाइल फाइबर का जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा है। तो ये मैंने यही बताया कि नरेंद्र मोदी जी का जो $300 बिलियन का ये है, इसके हिसाब से आज का जो फाइबर है, आज हमारा 12 मिलियन टन का मोटा मोटी फाइबर का कंजम्पशन है टोटल, सारे मिला के, कॉटन पॉलिएस्टर मिला के। और अगर 300 बिलियन है तो इसको 22 मिलियन टन में जाना पड़ेगा। तो 12 मिलियन टन का जो है उसमें 50-50 है, कॉटन 6 मिलियन टन है, पॉलिएस्टर, नायलॉन, विस्कोस ये सब मिला के $6 मिलियन है, ऑलमोस्ट 50-50 है। नाउ अगर ये 22 मिलियन टन करना है तो जो कॉटन है, कॉटन का ग्रोथ 6 का ज्यादा से ज्यादा 7.5 हो सकता है, उसके ऊपर नहीं होगा क्योंकि कॉटन एक एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, और जितना हमारी आबादी बढ़ेगा उतना एग्रीकल्चरल लैंड कम होगा और उतना फूड क्रॉप्स का प्रायोरिटी ज्यादा होगा। आज जितना आबादी बढ़ेंगे, फूड इन्फ्लेशन के हिसाब से हमारे गवर्नमेंट का प्रायोरिटी ये होगा कि जो खाने पीने का ये है, क्रॉप्स है, उसको बढ़ाना। सो डेफिनेटली अगर 7.5 भी होता है तो अराउंड 14.5 मिलियन टन, मतलब फ्रॉम करेंट 6 मिलियन टन से बढ़ाना पड़ेगा पॉलिएस्टर को, मोर देन डबल पॉलिएस्टर एंड ऑल अदर फाइबर्स मिला के, नायलॉन, विस्कोस सभी मिला के। बट आज आप देखेंगे कि बिटवीन पॉलिएस्टर, नायलॉन, विस्कोस, इसमें से सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका है? तो आज अगर हम देखेंगे विस्कोस, तो विस्कोस इज अ वेरी गुड फाइबर। विस्कोस का जो कंफर्ट लेवल है बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो एक वुड पाल्प से बनता है, तो उसका एक नेचुरल लिमिटेशन है। गवर्नमेंट ज्यादा, आज आप बोलेंगे कि 2 विस्कोस का प्लांट डालना है तो गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं देंगे क्योंकि पॉल्यूशन का है, एनवायरमेंटल इश्यूज है, आप पेड़ को काटेंगे, इट्स अ थ्रेट टू एनवायरमेंट। तो विस्कोस का ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकता है। सिमिलरली नायलॉन जो कैप्रोलेक्टम है उसका प्राइस हमेशा ऊपर रहता है। सो पॉलिएस्टर इज द ओनली फाइबर जिसका ग्रोथ हो सकता है। अगर हमें 14 मिलियन टन जाना है करंट 6 से, तो उसका ग्रोथ आएगा थ्रू पॉलिएस्टर ही आएगा। सो आज का जो कपड़ा नहीं चल रहा है या कोई वेराइटीज नहीं चल रहा है या है, फॉरगेट दिस, फ्यूचर में पॉलिएस्टर ही है जो फ्यूचर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ड्राइव करेंगे। सो ये जो है अभी नाउ, ये हमने यार्न का बात किया, अभी कपड़े में दिखता है। तो अपैरल का जो कंजम्पशन है, जो कपड़ा बनता है जो, तो वो आज 2016 में $63 बिलियन का वैल्यू था, जो 2025 में जो 12% CAGR है उसके हिसाब से 196 होने वाला है। आज $63 बिलियन आउट ऑफ टोटल $1686 बिलियन, इट कम्स अराउंड 3.7%, 4%। अब राउंड फिगर करेंगे, ये राउंड 4% से इसका 2025 में, जो आज से अभी 2 साल ही बाकी है, 2022 भी खत्म हो गया, 3 साल बाकी है, ये ऑलमोस्ट डबल होगा, 8%। तो ये जो अपैरल बनेगा, ये अपैरल डेफिनेटली आपको जितना फाइबर का हमने डिस्कस किया उसमें से खाली पॉलिएस्टर से ही बनना है। सो हम जैसा यार्न के एंगल से भी देख रहे हैं और इवन फैब्रिक के एंगल से भी देख रहे हैं, तो इसमें डेफिनेटली हमारे सामने डबल करने का स्कोप है। अभी ये हम देखते हैं कि फाइबर का जो है, ये मैंने ऑलरेडी ये बताया, जो इंडिया का सिनारियो 6 का बताया, वर्ल्ड का बताया। नाउ यहाँ पे हम जो सेकंड है राइट साइड में, इसमें ये बता रहा है कि 1991 में जो कॉटन का था कंजम्पशन, वो कॉटन का आज परसेंटेज वाइज कहाँ पे है एंड पॉलिएस्टर का कहाँ पे है। सो कॉटन इज गोइंग डाउन एंड पॉलिएस्टर का जो ग्रोथ हो रहा है। ये है कि पॉलिएस्टर के साथ कॉटन का, फाइबर का अफोर्डेबिलिटी। आज आप देखेंगे 2005 में कॉटन का प्राइसेस था 91 रुपीज, सॉरी कॉटन का प्राइसेस था 56 रुपीज एंड पॉलिएस्टर का प्राइसेस था 66, कॉटन एंड पॉलिएस्टर। तो कॉटन जो है वो 10 रुपया सस्ता था, पॉलिएस्टर को पहले रिच मैन्स फैब्रिक बोला जाता था, और आज वो देखेंगे तो उसमें आज पॉलिएस्टर फाइबर जो है वो 99 रुपीज से किलो है एंड कॉटन हो गया 147 रुपीज। ये 2018 का है, आज का डेट में ये 147 इज 188 रुपीज। सो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है पॉलिएस्टर से।
सो जो अफोर्डेबिलिटी है उसके हिसाब से भी आप देखेंगे तो कि पॉलिएस्टर इज द मोस्ट अफोर्डेबल फाइबर आज का दिन में। और अगर आज से कुछ नया डेवलपमेंट भी फाइबर का होता है, पॉलीमर का होता है, तो टू रीच द लेवल ऑफ करंट पॉलिएस्टर उनको 60-70 साल लगेगा, एटलीस्ट 40-50 साल तो लग ही जाएगा। सो आज का दिन में भी जितना फाइबर है उसमें से पॉलिएस्टर जो है दैट इज द मोस्ट अफोर्डेबल फाइबर। आप उसका प्राइस और सब फंक्शनलिटी उसके हिसाब से। ये पॉलिएस्टर का जो अपना एस्थेटिक ब्यूटी छोड़ के भी जो फंक्शनल है, मॉइस्चर मैनेजमेंट है, टेम्परेचर मैनेजमेंट है, कंफर्ट वेयर है, मेडिकल वेयर है, एक्टिव वेयर है। अभी यहाँ तक तो हमने सुना था, अभी इसके बाद आपका रेडिएशन कंट्रोल में यूज हो रहा है, कंट्रोलिंग ऑयल स्पिल्स में यूज हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रक्चर में हो रहा है, बोट फैब्रिक में यूज हो रहा है। और ये जो है ये पॉलिएस्टर का मॉलिक्यूल का ये है। सो पॉलिएस्टर इज द मोस्ट वर्सटाइल टेक्सटाइल फाइबर। So Reliance, as you know, की largest producer of polyester and largest producer of petrochemical in India and among the top 10 in the world. वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पॉलिएस्टर फाइबर एंड फिलामेंट प्रोड्यूसर है। हमारे कैपेसिटी 3 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनाम है। 5% ऑफ ग्लोबल सप्लाई वी आर सप्लाइंग। एंड रिलायंस में डेवलपमेंट के लिए हमारे पास रिलायंस टेक्नोलॉजी सेंटर है जिसका काम है डेवलपमेंट करना। वहाँ पे 80 साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट आर कंटिन्यूअसली डूइंग रिसर्च ऑन हाउ टू डेवलप न्यू थिंग्स इन पॉलिएस्टर, जिसके हिसाब से हमारे यहाँ काफ़ी नया प्रोडक्ट वगैरह बना है एंड ऑलरेडी हमने 28 प्रोडक्ट का पेटेंट भी किया है। सो इन पॉलिएस्टर वी हैव डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू एप्लीकेशन, जिसका 28 पेटेंट्स हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिए हैं। इंटीग्रेटेड है जो आप अभी बताया, डाइवर्सिफाइड एंड मोस्ट डिफरेंशिएटेड स्पेशलिटी है। और हम लोग हर एक सेगमेंट में है, कोई साड़ी, ड्रेस, गारमेंट, आप होम फर्निशिंग, आप कुछ भी देख लीजिए, इंडस्ट्रियल यार्न, सारे फैब्रिक में, मेडिकल फैब्रिक, जियो टेक्सटाइल, एवरी फैब्रिक में है। सेकेंड इज की हमारा जो लोकेशन है ये ऑल टेक्सटाइल मार्केट्स है, जहाँ पे आज सूरत है, भिवांडी है, साउथ है, अमृतसर है, पानीपत है, लुधियाना है, कानपुर है। एनी टेक्सटाइल मार्केट हमारे ऑफिस है, हमारे एग्जीक्यूटिव्स है, हमारे एफडीसीज है। नाउ अभी तक हमने जो देखा है वो ये देखा है कि पॉलिएस्टर का ग्रोथ जो है वो 100%, वी आर नाउ कॉन्फिडेंट कि फ्यूचर में पॉलिएस्टर का ही ग्रोथ होगा और ऑलमोस्ट हमें डबल करना पड़ेगा पॉलिएस्टर का। सो नाउ लेट अस सी कि हम लोग अभी डेवलपमेंट में क्या कर रहे हैं, नया हमें क्या करना चाहिए। तो अभी देखिए एक चीज है कि अभी मैं जस्ट ऊपर ही डिस्कस कर रहे थे आशीष जी और गिरिधर भाई से कि सूरत में जो कपड़ा पहले बनता था वो साड़ी का या ड्रेस मटेरियल का कपड़ा बनता था, बट आज का दिन में ज्यादा तक आपका फैब्रिक जो जाता है वो गारमेंटिंग में जाता है। सो साड़ी जैसा, साड़ी और गारमेंटिंग का दोनों का रिक्वायरमेंट अलग है। साड़ी के लिए जो फैब्रिक का रिक्वायरमेंट है, गारमेंटिंग के लिए जो फैब्रिक का रिक्वायरमेंट है वो अलग है। गारमेंटिंग ज्यादा तक बिकता है थ्रू ब्रांड्स, आज बड़े बड़े ब्रांड्स बिकता है, बड़े बड़े ब्रांड्स में थ्रू टैगलाइन बिकता है। एंड ब्रांड्स क्या करता है कि कुछ वैल्यू एडिशन करता है फैब्रिक में। सो फैब्रिक में वैल्यू एडिशन कैसा है कि जैसा आज सस्टेनेबिलिटी, अभी आशीष भाई बता रहे थे, सो सस्टेनेबिलिटी इज ए थीम जिसके ऊपर, बिकॉज आज पीईटी जो है, आज एक पेट बॉटल जो है, इट टेक्स 800 ईयर्स, 800 साल लगता है इसको बायोलॉजिकली डिग्रेड करने के लिए। सो डेफिनेटली ये जो पॉलिएस्टर है इसका इट्स ए चैलेंज फॉर अस। तो इसका एक सस्टेनेबिलिटी में हम लोग फ्रॉम पीईटी बॉटल से हम लोग रिसाइकल करके उसको फैब्रिक बना, यार्न बना रहा है, यार्न से फैब्रिक बना रहा है। सूरत में बहुत फैब्रिक बन रहा है। इसका हमारा ब्रांड नेम है ग्रीन गोल्ड। तो इसका मैं डिटेल्स में सारे का बताऊंगा। देन देयर इज वन इको गोल्ड जो अभी हिमांशु भाई बता रहे थे कि एक्टिवेशन ऑफ बायोमेट्रिक बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस जो होता है, तो इस इज इको गोल्ड। ये अभी नेक्स्ट ट्रेंड ये आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली आपका जो ग्रीन गोल्ड है, रिसाइकल्ड है, दैट इज ऑल्सो ए पीईटी पॉलीमर दैट ऑल्सो नीड्स टू बी रिसाइकल्ड। बट अगर इको गोल्ड जो है हमारे, जो बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल है, यू डोंट नीड टू रिसाइकल। उसके बाद एक फील फ्रेश है। ये सारे थीम है जो थीम के ऊपर हमारा डेवलपमेंट है।
फिलफ्रेश है। फिलफ्रेश इज एंटी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लोग सिल्वर आयन डालते हैं, जिसमें आपका माइक्रो फॉर्मेशन वगैरह नहीं होता है। मैं डिटेल्स में बाद में बताऊंगा। कूलटेक्स है, एक मॉइस्चर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपका बॉडी को कूल रखेंगे। थर्मल इंसुलेशन है, लाइट वेट, एयर लाइट। देन देयर इज वन प्रोडक्ट कॉल्ड ऑल क्लाइमा, कूल व्हेन हॉट, फैब्रिक विल कीप यू कूल इन गर्मी में, और आपको ठंडी में गर्म रखेंगे। देन कॉट लुक, कॉटन लाइक लुक। देन सुपरफिल, इसका टच जो है एकदम सॉफ्ट टच रहता है। देन सुपर ब्लैक, प्री कलर्ड ब्लैक। एंड उसके बाद फ्री फ्लो। फ्री फ्लो जो है हमारे सूरत में ज्यादातर फ्री फ्लो ही होता है, जिसमें एस्थेटिक ब्यूटी के ऊपर काम हम करते हैं। बट दिस इज वन पार्ट एस्थेटिक ब्यूटी। ये छोड़ के दुनिया बहुत आगे चले गए, जो पहले अभी बताया इनके ऊपर, जो सस्टेनेबल है, फिलफ्रेश है, कूलटेक्स है, एयरलाइट है, ऑल क्लाइमा है। तो हमें जो सूरत को, इंडस्ट्री को आगे अगर ये सब डायरेक्शन में भी काम करना पड़ेगा, एस्थेटिक ब्यूटी छोड़ के, मतलब फंक्शनलिटी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। सो ग्रीन गोल्ड, दिस इज मेड फ्रॉम 100% यूज्ड पीईटी बॉटल्स। इसका 80 बिलियन प्लास्टिक बॉटल्स पूरा साल भर में प्रोड्यूस होता है, जिसका 80% ऑफ 80 बिलियन प्लास्टिक बॉटल्स अल्टीमेटली लैंडफिल में जाता है। लैंड पॉल्यूशन होता है, फिर ये ओशन पॉल्यूशन होता है, और जो मैंने बताया कि 800 साल लग जाता है इसको बायोलॉजिकली डिग्रेड करने के लिए। सो अगर इसी हिसाब से अगर चले तो बाय 2050 आवर ओशियन विल हैव मोर प्लास्टिक बाय वेट देन फिश। ये प्रोसेस है, हम लोग बॉटल को सोर्स करते हैं, उसके बाद बॉटल को हम लेके जाके फ्लेक्स बनाते हैं वॉश लाइन में। उसके बाद हम फ्लेक्स को क्लीन करते हैं, और डस्ट, उसके बाद जो भी इम्प्योरिटीज है वो रिमूव करते हैं। फ्लेक्स को उसके बाद फाइबर में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ग्रीन गोल्ड हमारा PUI, FDY एंड टेक्सटाइलियन बनता है, जो बाद में फैब्रिक एंड फैब्रिक से गारमेंट बनता है। सो ग्रीन गोल्ड जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ये कार्बन फुटप्रिंट 30% कम करता है, क्योंकि आपका ऑलरेडी पॉलीमर बन चुका है। वो पॉलीमर पहले जो आप PTA और MEG मिला के आप पॉलीमर का प्रोसेस बना रहे हो, वो पॉलीमर बनाने की जरूरत नहीं है PET को। सो ये 30% आपका कार्बन फुटप्रिंट यूज करता है। एंड ऑल आवर प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, ओक्योटेक्स सर्टिफिकेट है। और 90% ऑफ वाटर ड्यूरिंग प्रोडक्शन जो है ये हमारे वो रिसाइकल्ड होता है। देन हम लोग ट्रेसेबिलिटी डालता है, ट्रेशर डालता है। आज हमारा यार्न से कपड़ा बनने के बाद अगर कहीं से भी अगर ये आता है, H&M से भी अगर ये आता है कि ये चेक कीजिए इसमें ग्रीन गोल्ड है कि नहीं, तो हम लोग ट्रेसर चेक करके बता सकता है कि ये रिलायंस का ग्रीन गोल्ड से बना हुआ है या ये नहीं है। तो हम लोग इसको ट्रेसेबिलिटी है। दो टाइप का फिजिकल ट्रेसेबिलिटी है, देन डिजिटल ट्रेसेबिलिटी है, थ्रू ब्लॉकचेन यूज होता है। डाइंग परफॉर्मेंस, इसका वाइडनेस बहुत ही सुपीरियर वाइडनेस आता है, एंड सुपीरियर डाइंग परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंसी लेवल है। इसमें डोप डाइड यार्न भी अवेलेबल हो सकता है, 40 के ऊपर सेट्स में हो सकता है। एंड जो डोप डाइड है, अगेन आपको बता दूं कि आज जो यार्न डाइंग प्रोसेस है, डोप डाइड जो है ये भी एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि यार्न को डाइंग करने के लिए आप वाटर यूज कर रहे हो, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हो, फैब्रिक होता है। बट अगर डोप डाइड यार्न आप यूज कर रहे हो तो पॉलीमर के अंदर ही आपका कलर मिक्स हो जाता है, कोई वाटर का जरूरत नहीं रहता है। देन कस्टमाइजेशन है इसके अंदर, और भी अगर किसी को फिलफ्रेश चाहिए ग्रीन गोल्ड में, किसी को कूलटेक्स चाहिए, किसी को अल्ट्रावायोलेट प्रोटेक्शन चाहिए, तो भी दे सकता है। सो मैन्युफैक्चरिंग ग्रीन गोल्ड जो बिकता है ना, ये हमेशा सर्टिफिकेट के ऊपर बिकता है, जो रिसाइकल्ड है। तो ये सारे सर्टिफाइड है, सब आपका ISO 9001, ISO 14001, OHSS 18001, ये सारे सर्टिफिकेट है। GRS सर्टिफिकेशन है, GRS इज थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू है। ग्रीन फाइबर का सर्टिफिकेशन है कंट्रोल यूनियन से। ओक्योटेक्स सर्टिफिकेट है। इट इज एवरी कस्टमर सपोर्ट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सपोर्ट, एवरीथिंग इज अवेलेबल। और ये है प्रोडक्ट रेंज, क्या प्रोडक्ट में आपका मिल सकता है। FDY एंड टेक्सटाइलियन में आपको ये जैसा 50 डेनियर है, 75, 100, 150, 300। सो फाइन डेनियर से कोर्स डेनियर
आपको चाहे पतला कपड़ा बनाना है या आपको भारी कपड़ा बनाना है, शूटिंग्स बनाना है, शर्टिंग्स बनाना है, साड़ी बनाना है, दुपट्टा बनाना है, कुछ भी यहाँ है, आपका सारे प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल है। नंबर ऑफ फिलामेंट्स में अवेलेबल है, लस्टर में अवेलेबल है, सेमी डल है, ब्लैक है, फुल डल है, डिफरेंट ये है। इको गोल्ड जो मैं बता रहा था, इको गोल्ड जो है इसमें एक्टिवेशन होता है एंजाइम्स का जो बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। सो जो पॉलिएस्टर का पीईटी पॉलीमर है उसको बायोलॉजिकली डिग्रेड करता है। दिस इज डन विथ सिक्लो टेक्नोलॉजी। ये आप देखेंगे कि आज जो फाइबर का होता है ये कंज्यूमर में जो गारमेंट है, अब हम लोग अभी प्लास्टिक बॉटल का रिसाइकल तो कर रहे हैं, बट गारमेंट का रिसाइकल तो होता नहीं है, बिकॉज गारमेंट में आज आपका क्या होता है कि डाइज एंड केमिकल्स रहता है, तो उसका वो डाइज को निकालना वेरी डिफिकल्ट ये हो जाता है उसमें। द प्रोसेस बिकम्स वेरी वेरी कॉस्टली। अगर निकाल भी सकते हो तो प्रोसेस बिकम वेरी कॉस्टली। सो द बेस्ट थिंग फॉर दिस फैब्रिक रिसाइकलिंग इज टू प्रोड्यूस इट थ्रू आपका इको गोल्ड जो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाएगा। और टोटल अभी तक का जितना कपड़ा बनता है उसका 50% रीयूज्ड होता है, रिसाइकल्ड होता है, 85% तो लैंडफिल में ही जाता है। ये कंडीशन होता है ओशियन का जो पॉल्यूशन के बाद बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं होंगे तो लैंडफिल में जाने के बाद ये होता है। नाउ ये जो है ये सॉइल में रहता है। ये फैब्रिक अगर आपका सॉइल ये बायोलॉजिकली डिग्रेड मींस ऐसा नहीं होगा कपड़ा आपका कबर्ड में है और वो पड़े पड़े डिग्रेड हो जाएगा। डोंट वरी, ऐसे होने वाला नहीं है। ये बायोलॉजिकली डिग्रेड तभी होगा जब ये लैंडफिल में जाएगा या सी वाटर में जाएगा या आपका सॉइल में मिट्टी में पड़ा रहेगा। सो ये जब मिट्टी में रहता है तो 88% डिग्रेड हो जाता है 742 डेज में, 92% डिग्रेड हो जाता है 844 डेज में एंड 91% हो जाता है 1278 डेज में। दिस इज फास्टर देन वूल इवन। और ये भी सारे आपका सर्टिफिकेशन के थ्रू मिलेगा। प्रोडक्ट रेंज अगेन टेक्सचर्ड FDY दोनों में मिलेगा और डेनियर रेंज 75, 100, 150, 300। फिलामेंट आपको 34 फिलामेंट से 144 फिलामेंट और ये ब्राइट में भी मिलेगा, FDI में भी डिफरेंट रेंज में मिलेगा। सो देयर इज लार्ज प्रोडक्ट रेंज। और जो टेक्सचर्ड है वो हमारे पास ये विथ और विदाउट स्पेंडेक्स, रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों में अवेलेबल है। इसके बाद आता है फील फ्रेश में। फील फ्रेश अभी जो मैंने बताया कि हमने अगर काफी टाइम में हम देखेंगे कि हमारी जो सार्ट है वो सार्ट के आर्म पीट से बैड ऑर्डर आता है, बुदबू आता है। दैट इज बिकॉज कि वहां पे पसीना होता है, पसीना वाटर है, उसके अंदर सॉल्ट है, तो दैट इज ए वेरी गुड प्लेस फॉर बैक्टीरिया टू फॉर्म। तो बैक्टीरिया जो फॉर्म करता है उसमें उनको बढ़ावा मिलता है, तो वो बैक्टीरिया के कारण हमारे उसमें बैड ऑर्डर आता है। तो इसके लिए जो हम लोग जो पॉलीमर बनाते हैं उसके अंदर सिल्वर आयन डालते हैं जो आपको ये बैक्टीरिया को फॉर्मेशन होने नहीं देंगे। ये आपका थ्रू प्रोसेसिंग भी हो सकता है। आप डाइंग कपड़े को डाइंग करेंगे तो उसमें भी हो सकता है, लेकिन प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एवरी वॉश वो कम हो जाता है। फर्स्ट वॉश उसका एफिशिएंसी कम हो गया, बाई 8 to 10 वॉश के बाद तो उसका कोई इफेक्टिव रहता ही नहीं है, डजंट बिकम इफेक्टिव। लेकिन जो पॉलीमर में हम करते हैं दैट इज परमानेंट। आप वट एवर मे बी द नंबर ऑफ वॉश, आप जितना भी उसको आप वॉशिंग करो या आप लॉन्ड्री करो कुछ नहीं होगा, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। और इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट भी नहीं रहता है प्रोसेसिंग के टाइम में। तो एंटीबैक्टीरियल कैसे होता है, जैसा मैंने बताया कि सिल्वर आयन जो है वो जो बैक्टीरिया है उसके जो सेल वॉल है उसको ब्रेक कर देता है और इसका जो माइक्रोब का जो रेस्पिरेशन प्रोसेस को डिसरप्ट करता है। दिस एम्बेडेड सिल्वर इन द फील फ्रेश फाइबर रिलीजेस positive ions. Positive ions attach to and break bacteria cell bodies. Thus inhibit its bacterial growth. Bacterial growth को ये prevent करता है। एंड इसका एफिशिएंसी मैंने जैसे बताया आपका दो टाइप का ये रहता है, एक बैक्टीरिया का रहता है
वन इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, इक्वली ग्राम नेगेटिव। सो दोनों में ये इफेक्टिव है। आपने कोई इतना टेक्निकलिटीज में जाने का जरूरत नहीं है। ओनली थिंग आपको गारमेंटिंग बनाना है, ब्रांड्स को देना है, तो ब्रांड्स एज ए एंटी माइक्रोबियल ब्रांड्स प्लेस करेंगे। और इसका प्रोसेसिंग इज वेरी सिंपल, कोई केयर नहीं लेना है। जैसा आपने यार्न लिया नॉर्मल 60 ग्राम वेटलेस या आप दानी रासियान जो भी जैसे बनाते हैं ऐसे आप बना दो, बिकॉज जो केमिकल सिल्वर आयन है वो पॉलीमर के अंदर है, इसमें कोई केयर लेने का जरूरत नहीं रहता है। बेनिफिट्स जो मैंने बताया, आपका बेटर हाइजीन एंड फ्रेशनेस रहता है एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहता है इररेस्पेक्टिव ऑफ आपका वॉशिंग एंड लॉन्ड्री। इनहेरिटेंट टेक्नोलॉजी हैव एज ओवर टॉपिकली ट्रीटमेंट्स जो मैंने अभी बताया, जो आपका आफ्टर एवरी वॉश उसका प्रोसेसिंग के बाद कम हो जाता है। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन बैक्टीरिया जो आपका ऑर्डर रिडक्शन करेंगे। बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसकलरेशन एंड डिग्रेडेशन, बिकॉज बैक्टीरिया जब फॉर्म करता है तो आप देखेंगे वो आपका फैब्रिक का कलर भी डिसकलर करता है। ये सारे टेस्टिंग का मेथड है, टेस्टिंग मेथड से ये सर्टिफाइड आपको मिलेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी स्किन फ्रेंडली। इसके बाद आ रहा है कूलटेक्स। कूलटेक्स एक यार्न है जो जिसका आप कपड़ा बनाएंगे तो वो आपको कूल रखेंगे। बेसिकली इट्स ए मॉइस्चर मैनेजमेंट। आपका जो पसीना होता है वो पसीना को एब्जॉर्ब करेंगे, फैब्रिक के ऊपर स्प्रेड करेंगे और इवापोरेट करेंगे, तो आपका फैब्रिक भी ड्राई रहेगा एंड आपका बॉडी भी कूल रहेगा। एंड अगेन ये जो मॉइस्चर मैनेजमेंट है ये भी आपको प्रोसेसिंग के थ्रू मिल सकता है, बट देन अगेन ये आपका आफ्टर एवरी वॉश इसका एफिशिएंसी कम हो जाएगा। बट जो हम यार्न में कर रहे हैं दैट इज परमानेंट। आप जितना भी वॉश करेंगे इन्यूमरेबल वॉश के बाद भी ये आपका इफेक्टिव रहेगा। राइट फ्रॉम द फर्स्ट वॉश टू लास्ट वॉश ये इफेक्टिव रहेगा, लाइफ टाइम तक रहेगा। एंड इसका हैंड फील भी सॉफ्ट आता है। सो बेसिकली ये वही है, माइक्रो चैनल्स है जो जिसमें से वो आपका पसीना स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके ऊपर आप देखेंगे स्प्रेड करता है, स्प्रेड करने के बाद वो इवापोरेट करता है। ठीक है। कूलटेक्स का अवेलेबिलिटी भी आपका टेक्सचर्ड यार्न में, हम अभी तक कूलटेक्स हम ज्यादातर टेक्सचर्ड यार्न में बनाया, फिलामेंट भी बना सकता है और ये सारे लस्टर में अवेलेबल है। आप सेमीडल, फुलडल, फैंसी, बारकोड, दीज आर ऑल स्पेशल पीटीवाई प्रोडक्ट। मेरे साथ संजय गौतम जी यहाँ पे है जो पीटीवाई का प्रोडक्ट हेड है। आपको जो भी प्रोडक्ट के बारे में आपको रिक्वायरमेंट है आप पूछ सकते हैं। मिलांजेस है, देन स्ट्रेच है जो डेनियर आपका 200x180 या 200x40, कंफर्ट कूलटेक्स है, देन सुपर सॉफ्ट है, सारे इसके अंदर है। और फैंसी फिलामेंट जो है उसमें भी आपका कूलटेक्स अवेलेबल है। स्पेस, पियानो, डिस्केट, ये सारे नाम हमारा स्पेशलिटी प्रोडक्ट का है। ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर गिविंग सम स्पेशल डिजाइन, स्पेशल इफेक्ट जो एस्थेटिक ब्यूटी के लिए काम में आता है, फैशन के लिए। सो दिस इज ए प्रोडक्ट जो आपको फैशन के साथ आपको परफॉर्मेंस भी देगा। देन कम्स एयर लाइट। तो जैसा कि ये टर्म है एयर लाइट, तो फैब्रिक विल बी वेरी वेरी लाइट। आज आपको जैसा एक कपड़े का देख के आपको लगेगा कि ये इसका वेट 10 किलो का जैसा है, बट एक्चुअली बाय वॉल्यूम 10 किलो जैसा लगेगा, एक्चुअली उसका वेट होगा 8 किलो 7.5 किलो। सो जो देख के लगेगा 6 किलो है, उसका एक्चुअल वेट होगा 6 किलो 4.5 किलो 4 किलो ऐसे होगा। दिस इज अ वेरी लाइट वेट। वेटलेस बनता है सॉलिड फाइबर से, ये एक्चुअल वेटलेस से इसमें से बन सकता है। सो दिस इज ए फंक्शनल फाइबर है जो आपका एयर को ट्रैप करता है और उसमें थर्मल इंसुलेशन होता है। लाइक आपका जो हम जानते हैं कि ये बेसिकली एक हॉलो काइंड ऑफ फाइबर है जो हम यार्न के अंदर इंजीनियरिंग करते हैं, करके उसका डिजाइन चेंज करते हैं। तो आप अगर ये एयरलाइट का फैब्रिक पहन के आप बाहर जाते हो तो आप जैसा ही एसी गाड़ी में बैठे हो
आपका 20 डिग्री टेम्परेचर है, जैसे आप बाहर धूप में आया 44 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो आपका जो हीट का जो सडन चेंज ऑफ हीट है वो आपका बॉडी एक्सेप्ट इमीडिएटली नहीं कर पाता है, जिसके लिए हम सर्दी गर्मी में बोलते हैं बीमार हो जाता है। बट अगर आप एयरलाइट का फैब्रिक पहनते हो तो आपको वो प्रोटेक्ट करेगा, इमीडिएटली बाहर का टेम्परेचर को आपको बॉडी में आने नहीं देंगे। सिमिलरली रिवर्स कंडीशन होता है, आप गर्मी में हो, एसी में जा रहे हो, तो आपको इमीडिएटली ठंडी को आने नहीं देंगे। सो दिस इज अ फंक्शन जो आपका लाइट वेट के साथ साथ ये इंसुलेशन प्रॉपर्टीज के थ्रू ये फंक्शन आते हैं। ये सारे गारमेंटिंग के लिए काम में आता है। ये गारमेंट जो भी आजकल आप देखेंगे गारमेंट का ट्रेंड है, एंड ये सारे गारमेंट्स का ये है। अवेलेबिलिटी ये एफडीवाई में 40 डेनियर 75 150 डेनियर है, और टेक्सचर्ड में 75 150 300, और साथ में स्ट्रेच भी इसमें मिलेगा। दिस इज ऑल क्लाइमा। ऑल क्लाइमा एक प्रोडक्ट है, ये आपको गर्मी में ठंडा रखेंगे और आपको ठंडी में गर्मी रखेंगे। इसके ये आपका जो पहले हमने दिखाया एयरलाइट जो है इंसुलेशन प्रॉपर्टी, उसके साथ इसमें मॉइस्चर मैनेजमेंट भी है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे कूलटेक्स फैब्रिक, कूलटेक्स का हमने पहले डिस्कस किया था कूलटेक्स, एंड उसके बाद हमने एयरथर्म डिस्कस किया। ये दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो एक ये बनेगा जो ऑल क्लाइमा है। दिस इज अ फैब्रिक फॉर ऑल क्लाइमेट, सेम फैब्रिक फॉर ऑल क्लाइमेट। प्रोडक्ट रेंज सारे प्रोडक्ट में अवेलेबल है, 90 230 कंफर्ट है ऑल क्लाइमा, एंड ये भी विथ और विदाउट स्पेंडेक्स लाइक्रा, मतलब स्ट्रेच या विथ या विदाउट स्ट्रेच मिलेगा। लस्टर सेमीडल में मिलेगा। सुपरफिल है बेसिकली शॉपन, जो सॉफ्ट टच है विथ अ रिच फील है। ये हमारे एग्जीबिशन में सुपरफिल का काफी फैब्रिक वगैरह हमने इसके पहले भी रखा, अभी शायद हमने लेके भी आए हैं। अभी GFRRC में ये सैंपल आपको डिस्प्ले के लिए मिलेगा। जो प्रोडक्ट हमने आज डिस्कस कर रहे हैं, इसका काफी प्रोडक्ट संदीप एंड मुकेश हमारे जो डेवलपमेंट टीम है उनके साथ है। आप उनका नंबर लेके देख सकते हैं, या यहाँ भी आप GFRRC में आज लेके आए, नहीं तो आज लेके आए हैं, या अगर कल भी है तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, नहीं मैं तैयार होके आया था सर। तो इनका एक्सेलेंट एस्थेटिक ब्यूटी है, एंड सपन एज द नेम सजेस्ट इज लाइक के स्पन, कॉटन स्पन के जैसा है। बट जो कॉटन में आपका पीलिंग का भी प्रॉब्लम आता है, वो इसमें ये पीलिंग में नहीं आएगा। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है। इसका ड्रेप बहुत अच्छा है, और इसका अवेलेबिलिटी जो है टेक्सचर्ड यार्न में है। ये एफडीआई में नहीं है, ये टेक्सचर्ड यार्न में है। इसमें आपका डेनियर रेंज 90 135 230 330 450, सो फाइन टू कोर्स डेनियर सारे डेनियर रेंज में है। सारे लस्चर में है आपका सेमीडल फुल डल, और इसके साथ आपका कूलटेक्स आर फील फ्रेश, ये सारे आप कॉम्बिनेशन भी बन सकता है फैब्रिक में। देन कॉटलुक इज एज द नेम सजेस्ट कि इट लुक लाइक कॉटन। तो ये भी ब्यूटीफुल ड्रेप विद एक्सेलेंट हैंड फील आता है। इसका कॉटन लुक के साथ साथ इसका हैंड फील भी बेटर आता है, नॉट लाइक नॉर्मल पॉलिएस्टर सेमीडल, हैंड फील बहुत बढ़िया आता है। सो अपीयरेंस विद डल एंड मैट अपीयरेंस, जैसा कॉटन का हमने क्या देखा है, अपीयरेंस जो है थोड़ा मैट ही अपीयरेंस, डल अपीयरेंस रहता है। पॉलिएस्टर का कपड़ा क्या हम दूर से देखते हैं कि चमक रहा है, तो कॉटलुक आपका वो नहीं देंगे। हम दूर से देख के बोलते हैं ये सिंथेटिक है, पॉलिएस्टर है, बट एटलीस्ट कॉटलुक आप यूज करेंगे तो वो नहीं आएगा, आपका मैटी अपीयरेंस आएगा। ये होम टेक्सटाइल में भी यूज हो रहा है, एंड आपका ये डिफ लस्टर रिजेंबलिंग कॉटन होता है। ड्रेप बहुत बढ़िया है इसका, एंड ये इजी टू वॉश एंड ड्राई है। लाइक कॉटन जैसा इजी टू वॉश ड्राई वो नहीं है, बट दिस इज इजी टू वॉश एंड ड्राई। एंड इसका स्ट्रेंथ एक्सेलेंट है, एंड ड्यूरेबिलिटी भी लॉन्ग ड्यूरेबल है। प्रोडक्ट रेंज टेक्सचर्ड यार्न में भी अवेलेबल है, एफडीआई में भी है। टेक्सचर्ड में आपका 50 डेनियर 48 फिलामेंट 75 48 72 फिलामेंट 1 DFF का प्रोडक्ट है, 155 डेनियर है, और रिजिड एंड स्ट्रेच। रिजिड मीन्स विदाउट लाइक्रा, और स्ट्रेच
विथ लाइक्रा भी यूज होता है, स्पेंडेक्स या लाइक्रा। FDI में 50-48, 72-72, 172, 150-72 में अवेलेबल है। सो हमारे ये जो फैब्रिक है, ये हम लोग अभी तक नॉर्मली क्या होता है कि एक स्पिनर का काम है यार्न बेच देना वीवर को B2B, बट हम लोग वो नहीं करते हैं। हम लोग B2B2C हम स्ट्रेटेजी में हैं, तो बिजनेस टू कंज्यूमर तक हम जाते हैं उसमें। एंड इसके ये जो प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया, ये सारे प्रोडक्ट्स का जो गारमेंट आप कपड़ा बनाएंगे, जिनको भी देंगे वो गारमेंट बनाएंगे तो उसको हमारा हैंड टैग मिलेगा। आप सोचिए आज आप गारमेंट बिक रहे हैं, उसमें रिलायंस का हैंड टैग है, रिलायंस का सिंबल है। दिस विल हेल्प यू इन सेलिंग, बिकॉज आज रिलायंस का सिंबल जो है, रिलायंस का जो लोगो है, अब जब भी एक कंज्यूमर वो देखेंगे तो उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई एटलीस्ट ट्रस्टेड क्वालिटी इसमें मिलेगा। सो हैंड टैग सपोर्ट मिलेगा आपको इसमें। देन फैब्रिक टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, वी विल एंश्योर दिस टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन का भी आपको हम ये करेंगे। Then consistent quality, obviously the product is from the house of Reliance, तो आपको quality and consistent quality का and supply का आपको करना नहीं है चिंता। R&D ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग जो R&D कर रहे हैं, जो आपको पहले बताया था RTC है हमारे, जहाँ पे 80 साइंटिस्ट आर वर्किंग। तो ये R&D ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम लोग जो डिफरेंट ब्रेक थ्रू इनोवेशन कर रहे हैं, ये मार्केट में लेके आ रहे हैं। टेक्निकल सपोर्ट आपको सारे प्रोडक्ट का अक्रॉस द वैल्यू चेन टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। अक्रॉस द वैल्यू चेन मीन्स हम जिसको प्रोडक्ट बेच दिया खाली वहाँ खत्म नहीं हो गया, उनके आगे जो फैब्रिक जाएगा वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है तो वी विल डेफिनेटली गो टू दैट एक्सटेंट, हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होगा। एंड वी टेक कंप्लेंट एज एन इन्वेस्टमेंट, नॉट एज एन कंप्लेंट एज अ कंप्लेंट। सो परफेक्टली अलाइंड विद द मेगा ट्रेंड्स एंड कंज्यूमर नीड्स। तो ये हो गया अभी अपैरल फैब्रिक के बारे में मैंने बताया कि अपैरल फैब्रिक के अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं, जो थीम बताया, डिफरेंट अलग अलग स्पेशलिटी का बताया। अभी हम आ रहे हैं नॉन अपैरल कुछ प्रोडक्ट में। जैसा आज हम लोग काफी टाइम में सोचते हैं कपड़ा इतना बना रहे हैं, कपड़ा बिक नहीं रहा है सूरत में टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या करना है, पहले लूम लगा लेता हूँ, रेपियर या वाटर जेट या लगा लेता हूँ, उसके बाद सोचता हूँ क्या कपड़ा बनाना है। तो अभी हम देखते हैं कि पहनने के कपड़े के सिवा और क्या हम बना सकते हैं। तो हमारे एक ये है कि इंडस्ट्रियल यार्न। तो अभी ये है हमारा एक IDY है जिसको कहते हैं कि इंडस्ट्रियल यार्न, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल यार्न का नॉर्मल डेनियर रेंज 500 के ऊपर स्टार्ट होता है, 500 के ऊपर, 1000, 2000, 3000 डेनियर होता है। और इसका जो टेनासिटी होता है वो 8.5 GPD के ऊपर होता है। ये यार्न को आपको कपड़ा बनाने के लिए कोई ट्विस्टिंग वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट वे, बिकॉज इट इज सो स्ट्रॉन्ग कि ये एवरेशन में कुछ कभी धागा टूटेगा ही नहीं है। आपका हाथ काट देगा लेकिन धागा नहीं टूटेगा, इतना स्ट्रॉन्ग ये रहता है। तो ये इसका 250 से 6000 डेनियर होता है, बट 250 नॉर्मली बहुत कम होता है, ये 500 डेनियर से चालू होता है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जैसा मैंने बताया कि टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी है बहुत, एंड देन ड्यूरेबिलिटी बहुत हाई ड्यूरेबिलिटी है, लो इलोंगेशन एट ब्रेक है, बेटर टेम्परेचर रेजिस्टेंस है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल पॉलिएस्टर, बिकॉज इसका पॉलीमर इज डिफरेंट। एंड इसका एप्लीकेशन क्या है कि जियो टेक्सटाइल, mooring ropes, tire cords, seat belt, conveyor belt, transmission belt, hoses, then coated fabrics, different kind of coated fabrics. So ऊपर का जो फर्स्ट है वो जियो ग्रिड है। जियो ये हमने देखा है काफी जगह में, हमने आज रोड में भी यूज होता है, सॉइल में यूज होता है, आपका सॉइल इरोशन के लिए होता है, रोड में यूज होता है, सॉइल रीएनफोर्समेंट के लिए यूज होता है जियो ग्रिड। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है ये आपका इवन सॉइल इरोशन होने में, इरोशन को रेजिस्ट करने में लगता है, रीएनफोर्समेंट इन द रीएनफोर्समेंट ऑफ रिटेनिंग वॉल्स। काफी आप जो फ्लाईओवर बनता है उसका वॉल में ये यूज होता है आपका। सो एंड देन जियो स्ट्रैप, नीचे का जो पिक्चर है वो जियो स्ट्रैप है। ये एक प्लानर स्ट्रक्चर है जो आपको कोर जो है इसका हाई टेनासिटी पॉलिएस्टर के इसमें बनता है, उसके ऊपर काफी कोटिंग वगैरह होता है। ऊपर का फाइबर जो है, ऊपर का जो है आपको देख के लगेगा ये प्लास्टिक है, बट दिस इज ए यार्न, उसके ऊपर ये कोटिंग हुआ है।
दीज आर ऑल फंक्शनल। ये जैसा आज सॉइल इरोशन के काम में आएगा, होल्ड करने में, सॉइल इरोशन रोकने के काम में आएगा। सो दीज आर ऑल फंक्शनल जियो ग्रिड में। तो जियो ग्रिड का जो मार्केट है आप देखेंगे कि 1920 का जो मार्केट है ऑफ जियो टेक्सटाइल का डोमेस्टिक का बहुत ही कम है। मतलब इंडिया में ये जो मार्केट है, आज जो हम लोग अपैरल का मार्केट देखेंगे इंडिया में ऑलमोस्ट 90% अपैरल हो जाएगा। मतलब एटलीस्ट हमारे सूरत में 90% 95% अपैरल ही होगा। नॉन अपैरल टेक्निकल टेक्सटाइल तो प्रोबेबली 1% भी नहीं होगा। बट आज अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो एटलीस्ट 18 to 20% जो है ये टेक्निकल टेक्सटाइल का ये है डिमांड है। और जो ग्लोबल मार्केट है वो 1305 मिलियन डॉलर्स का मार्केट है, जहाँ पे इंडिया का है आपका 515 है जो 1920 में है। और ग्लोबल मार्केट जो है ये 5.5 CAGR में बढ़ेगा, जो होगा 1705, जबकि इंडिया का जो है वो 15% CAGR में बढ़ेगा। 15% CAGR इसीलिए क्योंकि बेस कम है, इसीलिए आपको ज्यादा CAGR ये लगता है। तो अभी ये जो बना रहा है डोमेस्टिक प्लेयर्स जो है, स्ट्राटा है बॉम्बे का है, टेकफैब है वापी में है, रेनफोर्स्ट, ये सब आपका बना रहा है। ग्लोबल प्लेयर्स जो है स्ट्राटा इज ऑल्सो ए ग्लोबल प्लेयर, देन टेंसा है, हुस्कर है। ये सब फाइबर या फिलामेंट जो है ये आप भी सोच सकते हैं। आप जब नेक्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं कि मेरे को वाटर जेट डालना है, तो आपको ये सोचना है कि मेरा वाटर जेट में 500 डिनियर या 1000 डिनियर चल सकता है क्या। आप मैन्युफैक्चरर से बात कर सकते हैं, मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिले। ये स्लिंग्स है, वेविंग्स जो आपको बता रहा था, मोरिंग रोप्स। ये भारी जो हेवी कोई भी इंडस्ट्रियल आइटम को उठाने के लिए काम में आता है। दिस इज मेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल यार्न, हाई टेनासिटी इंडस्ट्रियल यार्न। और एडवांटेज ये है कि ये लाइट वेट होता है। पहले आपका जो क्रेन में ये होता था वो सब भारी होता था, ये लाइट वेट है। तो इसमें आप इंडियन का प्लेयर देखेंगे तो 1-2 इंडियन प्लेयर है, इसमें 3 है इंडियन प्लेयर्स है। बाकी ग्लोबल प्लेयर्स का नाम तो खाली मतलब जो टॉप 5-6 है वो दिया है। तो ये सब काफी एरियाज है जो आज इसका जो वेविंग्स एंड स्लिंग्स का जो इंडिया का कंजम्पशन है उसका 88% इंपोर्ट होता है, 12% ओनली है। आप सोचिए कितना मार्केट पड़ा है हमारे लिए ये बनाने के लिए। ओनली थिंग कि हम जो हमारा सोच है वो साड़ी और ड्रेस और गारमेंट के बाहर सोचा नहीं है। तो ये सारे डिफरेंट एप्लीकेशन है। सो ये इंडस्ट्रियल यार्न का वेविंग्स एंड स्लिम्स का जो प्रॉपर्टीज चाहिए, रेजिस्टेंस टू अल्ट्रावायलेट डिटोरिएशन चाहिए, क्योंकि ये आपका मोस्टली काम धूप में होगा। सो अल्ट्रावायलेट रेजिस्टेंस होना चाहिए। देन इसका स्ट्रेचिंग एंड श्रिंकेज होना चाहिए। ये आप हेवी लोड उठाते उठाते ये स्ट्रेच नहीं हो जाना चाहिए, ये स्ट्रेच रेजिस्टेंस होना चाहिए। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इजी क्लीनिंग होना चाहिए, क्विक ड्राइंग होना चाहिए, वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए। देन टायर कॉर्ड। टायर कॉर्ड जैसा हमने ये जानते हैं कि हम नायलॉन टायर कॉर्ड है, अभी पॉलिएस्टर टायर कॉर्ड का भी काफी ग्रोथ हो रहा है। सो हमारा जो पॉलिएस्टर यार्न है एंड प्रोबेबली आज नायलॉन का जैसे प्राइसेस आप देखेंगे कि पॉलिएस्टर से ऑलमोस्ट डबल प्राइस हो जाता है। सो टायर कॉर्ड जो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से ग्रेजुअली पॉलिएस्टर इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर टायर कॉर्ड के लिए। तो फ्यूचर में ये भी एक बहुत अच्छा है। इसका यूवी रेजिस्टेंस, लो कॉस्ट, काफी सारे इसका यूएसपी है, लो मॉइस्चर रिगेन, हाई मॉड्यूलस, बहुत सारे हैं। तो ये इंडियन टायर मार्केट का थोड़ा हमने जो सर्वे किया था वो ये रिजल्ट है, कितना पैसेंजर कार ये है। दिस इज मिलियन यूनिट्स है फाइनेंशियल ईयर में कितना बनता है ये। और ये एक्सपेक्टेड ग्रोथ क्या है अप टू 25 में क्या होगा, CAGR क्या है आप देखेंगे 12%। आज आप टेक्सटाइल का ग्रोथ तो 5-6% हम गिन रहे हैं, बट दिस इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 11 to 12% अभी है। बेल्टिंग, हमारे जितने भी मशीन का बेल्ट है, ये बेल्ट सारे बेल्ट जो है वो इंडस्ट्रियल यार्न से ही बनता है। सो बेल्टिंग फैब्रिक्स ये रीइंफोर्समेंट के लिए यूज होता है, कन्वेयर बेल्ट के लिए यूज होता है, सारे मशीनरीज बेल्ट के लिए यूज होता है।
बेल्टिंग में इंडिया में प्लेयर है, ज़्यादा नहीं है, ऐसे भी मतलब बड़े बड़े 7-8 प्लेयर है, बाकी छोटे मोटे कुछ प्लेयर है। बट अगेन ये बेल्ट का भी फैब्रिक जो है वो जितना इंडिया में बनता है उसके डबल से ऊपर ज़्यादा ये हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो एशिया पैसिफिक रीजन जो है ये अभी आपका हम ग्लोबल फैब्रिक का देखा है, ग्लोबल का फाइबर का देखा है, तो उसमें एशिया पैसिफिक रीजन जो है, एशिया पैसिफिक रीजन इंडिया, चाइना, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू डोमिनेट द ग्लोबल मार्केट। ये नॉट ओनली बेल्टिंग बट सारे में एशिया पैसिफिक रीजन डोमिनेट करेंगे। इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोइंग कंजम्पशन इन द स्टील सेक्टर इज ऑल्सो ट्रिगरिंग दिस ग्रोथ। ये क्या है कि एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री के साथ को मिंगल्ड होता है, जैसा स्टील का ग्रोथ हो रहा है, आज टायर में स्टील का भी आपका ये लगता है, तो डेफिनेटली पॉलिस्टर का भी ग्रोथ होगा। दिस इज सम ऑफ द फैक्ट ऑफ रिलायंस कंट्रीब्यूशन टू टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हमारे जो इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का साइज है $18.9 billion। This is 2019-20 and it was approximately 8.7% of US $217 billion global textile market. So RIL जो है, RIL has heavily invested in promoting technical textile। हमारे पास हजीरा में एक प्लांट था, अभी हमारे पास पातालगंगा में एक प्लांट है महाराष्ट्र में, एंड वी आर इन्वेस्टिंग अगेन इन महाराष्ट्र इन टेक्निकल टेक्सटाइल। नया कैपेसिटी हम लेके आ रहे हैं। और ये जो हमने हाई टेनासिटी दिखा है, इसके सिवा भी हम लोग सुपर हाई टेनासिटी डेवलप किया है। एक्टिवेटेड एडेसिव एक्टिवेटेड, उसके ऊपर आपका एडेसिव लगेगा। ऐसे नॉर्मली पॉलिएस्टर के ऊपर एडेसिव लगता नहीं है, बट डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करके हमने एडेसिव एक्टिवेटेड हाई टेनासिटी यार्न बनाया, लो इलोंगेशन हाई टेनासिटी बनाया, लो श्रिंकेज हाई टेनासिटी बनाया। डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज में यूज हो रहा है। So these are all the facts of RIL contribution. This is the last slide. ये मैंने पहले भी 1-2 बार शायद दिखाया था, बट कोई बता सकता है इसका टेक्सटाइल से क्या कनेक्शन है? हाँ, बेबी वेयर करेक्ट एक है, और एनी अदर? बेडशीट है, कंफर्ट है, करेक्ट। But the reason for textile industry smiling is as soon nahi, as long as a child is born naked, demand for textile will always remain. Thank you, thank you. Pansab, the last thing was the best. कि जब तक ऐसे बच्चे विदाउट फैब्रिक पैदा होंगे तब तक टेक्सटाइल्स का कोई प्रोग्रेस रोक नहीं सकता। एंड फ्रेंड्स, जो पान साहब ने बताया कि अभी आप देख रहे हैं जैसे सूरत में गारमेंट इंडस्ट्रीज का प्रोग्रेस बहुत हो रहा है, और ये जो सब इनके यान है लाइक ऑल क्लाइमेट, एयरलाइट, कॉटलुक, ये सब की वजह से गारमेंट इंडस्ट्री को भी काफ़ी ग्रोथ मिलेगा। एंड विद द IDY यान, हाई टेनासिटी यान, जो 12% CAGR से ग्रोथ हो रहा है, दैट विल ऑल्सो गिव द ग्रोथ टू द सूरत इंडस्ट्री। हमारे साथ अभी हमारे पास प्रेसिडेंट महेंद्र भाई काजीवाला भी हैं, एंड आई रिक्वेस्ट महेंद्र भाई टू एनलाइटन फर्दर। थैंक यू। ओके, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर हैं दैट वी कैन रेज। थैंक यू। So first of all, it was a great presentation. બધા નવા કેટલા યાનો આવવાના છે, અમે લોકો સવાર સાંજ કાપડ અને યાન વેચીએ, છતાં અમારા મતે પર નવું છે, અને મને એમ લાગે છે ઇટ વોઝ વન્ડરફુલ ફોર એવરીબડી. મારો જે ક્વેશ્ચન છે, આમ તો મેં પાન સાહેબને ઉપર પ્રેસિડેન્ટ કેબિનમાં થોડો સમય હતો તો વાત કરી કે અમે લોકો બેંકમાં વી રિસીવ સો મેની ન્યૂ એપ્લિકેશન ફોર ન્યૂ ઇન્ડસ્ટ્રી. દાખલા તરીકે નવા વોટર જેટ આવે છે, રેપિયર આવે છે, વાઇડર વિથ રેપિયર આવે છે. પાન સાહેબ, so many new machines every week, you know, we receive in Surat so many new application, અને દર અઠવાડિયે કંઈ ને કંઈ નવા મશીનો લાગતા જાય છે. અને આપણે બહુ સરસ કહું કે પહેલા લોગ્સ નાખી દેવાના,
પછી વિચાર કરવાનો કયું કપડું બનાવવાનું ક્વેશ્ચન છે ગિરધરભાઈ. તો આ તો આપણી બધાની ટેન્ડન્સી છે અને આપણે સ્વીકારીએ છીએ. તો એની લીધે ચેમ્બરની અને રિલાયન્સની જવાબદારી વધે છે એ ગાઈડ કરવાની. આજનો પણ આ સેમિનાર છે એ જ પર્પઝ છે કે આપણને ખબર પડે શું કરવાનું છે. તો નવા તો હું સાહેબને પૂછું છું કે હમણાં બેંકોમાં અમને લોકોને એમ કે છે જે વ્યુઅર્સ છે કે અમને બીજી 1 કરોડની સીસી લિમિટ આપો, કારણ કે પ્લેન ફેબ્રિક્સનો બહુ સ્ટોક છે. દાખલા તરીકે વેટલેસ છે કે જે પ્લેન ફેબ્રિક્સ છે 60 ગ્રામ છે. અને એવું કહેવાય કે એક જમાનામાં 60% ભેગા નતો થતા અને અત્યારે સામાન્ય વ્યુઅર પાસે જે પ્લેન ફેબ્રિક્સ છે 2 લાખ મીટર કપડું સ્ટોક થાય છે. અને એને માટે ગાઈડન્સ જરૂર. તો હું આપને પૂછીશ કે શું કરવું જોઈએ એ લોકોએ. થેન્ક યુ वेरी मच. जैसा बताया कि देखिए स्कोप तो बहुत है, मतलब करने के लिए बहुत सारे हैं. हम लोग खाली सोचते हैं, खाली अपैरल का ज़्यादा सोचते हैं, नॉन अपैरल का सोचते नहीं है. नॉन अपैरल का मैंने जो बताया ये मतलब समुंदर में से एक बकेट पानी के जैसा है, बहुत है, एक बहुत बड़ा समुंदर है नॉन अपैरल में. एंड उसके सिवा भी आज आप देखिए कि काफ़ी अपैरल में भी आज शर्टिंग शूटिंग्स, आपका बेड शीट, आपका आज आप जैसे अभी हिमांशु भाई ने फ्लावर का बुके दिया दैट इज मेड फ्रॉम फैब्रिक. तो आज कितना सारे एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन तो बहुत सारे हो सकता है, बट हमें एक सोचना चाहिए कि ग्लोबल ट्रेंड क्या है, वर्ल्ड का ट्रेंड कहाँ पे है, क्या है. तो जैसा मैंने बताया कि आज हम लोग पहले सोचते थे कि पहनने का कपड़ा साड़ी ड्रेस, आज हमारा हो गया है कि गारमेंट. और गारमेंट जो है, जैसा ही गारमेंट होने के साथ साथ गारमेंट में कुछ फंक्शनैलिटी होना चाहिए. गारमेंट सिंपल गारमेंट बिकेंगे नहीं, उसमें कुछ फंक्शनैलिटी होना चाहिए. या तो उसके अंदर कंफर्ट हो, उसके अंदर मॉइस्चर मैनेजमेंट हो, कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी होना चाहिए, या ऑल क्लाइमा हो. तो ये फ्यूचर ट्रेंड्स है. तो आपके पास जो भी आता है उनको आप गाइड कीजिए कि अलग अलग एप्लीकेशन में. और हमारे रिलायंस में आप हमारे ऑफिस में कभी भी आप भेजिए कि हमारे पास ऑफिस में भी एक डिस्प्ले सेंटर है जहाँ पे हम लोग सब फैब्रिक का सैंपल रखता है. मेरे साथ यहाँ पे FDY टीम है, तारक, फरीद, PTO में संजय, डेवलपमेंट में टीम है, मुकेश गेड़िया, संदीप, आनंद अवस्थी सब है. तो वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प, रेडी टू गिव डायरेक्शन कि क्या नया और बनाना चाहिए. થેન્ક યુ પાંચસો. મહેન્દ્રભાઈ એમનું એમ કેવું છે કે જે બી બેંકમાં લોન લેવા આવે એને આંખ નીચે ને આપ્યા કરજો. Okay. Such a growth is there, so don't hesitate, just give the loan. And now I request any question answer for this, please. રાજેશભાઈ ને કે પૂછવું છે? રાજેશભાઈ કઈ ક્વેશ્ચન છે તમારા? राजेश भाई तो सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक क्वेश्चन पूछते हैं. अभी यहाँ पे डिलीवरी को छोड़ के ચેતનભાઈ ને બી ઘણા ક્વેશ્ચન હતા કે ભાઈ આ મંદીમાં શું કરવું જોઈએ. नहीं चेतन भाई को मालूम है क्या करना चाहिए. So he is there. Tell him question, please. चेतन भाई का मैं बता दूं कि चेतन भाई टोटली डिफरेंट फील्ड में आ गए. मतलब पुराना फील्ड तो है ही है. अभी चेतन भाई का जो फील्ड है वो प्रोबेबली मंथ आफ्टर मंथ मेरे को लगता है 15-20% CAGR में ग्रोथ हो रहा है. मतलब जो प्रोडक्ट मेरे से चेतन भाई पहले मांगते थे आज उसका 3 गुना डेनियर का प्रोडक्ट ले रहे हैं. मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बट डेफिनेटली चेतन भाई इज वे अहेड. Thank you. That gentleman, please. नमस्कार सर. जैसे यहाँ पे सर आपने सर तनुज अग्रवाल मेरा नाम है, मैं मित्तल फैब्रिक से न्यू कमर ही हूँ वीविंग लाइन में. लास्ट टाइम भी आया था. तो हाई टेनिसिटी यार्न में जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल में अगर आपने जैसे बताया कि बेल्ट के लिए आप फैब्रिक बनाते हो, तो अगर वो चीज़ हमको बनानी तो उसके लिए पर्टिकुलर आपसे वो धागा डेवलप करवाना पड़ता है कि मतलब वो जनरली रहता है सब में एक ही टाइप का थ्रेड यूज होता है? धागा सेम है. आप 1000 डेनियर जैसा आपका आज पहनने का कपड़ा 50 डेनियर से 100 डेनियर का होता है, डिपेंडिंग अपन क्या कपड़ा बना रहे हो उसके ऊपर. सिमिलरली बेल्ट में भी आपका 1000 डेनियर यूज होता है, 2000 होता है, 3000 डेनियर होता है. आपको कौन सा टाइप का बेल्ट बनाना है, हेवी बेल्ट है, मीडियम रेंज का बेल्ट है, वो अलग अलग होता है. सो यार्न इज रेडी. ओनली थिंग आपको मशीनरीज में
मेरे हिसाब से बेस्ट सुइटेबल मशीनरी इज रैपियर इसमें, बिकॉज उसमें आज वाटर जेट या एयर जेट में क्या है कि इतना थिक यार्न को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड इज डिफिकल्ट करंटली। तो आपका रैपियर इज द बेस्ट मशीन। अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मेरे को एंड प्रोडक्ट बता के आपको यान मतलब लेना पड़ता है कि मतलब आपका जो नहीं एंड प्रोडक्ट बता के यहाँ पे आपका 1000 डेनियर में 4 प्रोडक्ट होगा। एक हाई टेनासिटी, सुपर हाई टेनासिटी, लो मॉड्यूलस, अलग अलग होगा। तो आप क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियल यान कैसे बिकता है, आपने इंडस्ट्रियल यान लिया, 1000 डेनियर का प्रोडक्ट लिया, आपने एक बेल्ट के लिए फैब्रिक बनाया, जो बेल्ट मैन्युफैक्चरर है उनको आपने दिया, वो आपका फैब्रिक को टेस्टिंग करेंगे, पहले टेस्ट करके ओके सर्टिफिकेट करेंगे, उसके बाद आपसे लेंगे। तो ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है मैंने कपड़ा बना दिया और नहीं बिका तो 60 ग्राम 20 की जगह में 19 रुपए में बेच दिया, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका वो टेस्ट में पास नहीं हुआ, इट हैज जीरो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। सो वो आपको सारे कुछ बता के कि मैं इस प्रोडक्ट के लिए, ये एप्लीकेशन के लिए कर रहा हूँ, ये डेनियर है, उसका आपको सारे कुछ ये करके करना पड़ेगा। आपके पास से गाइडेंस भी मिल जाता है कि मतलब आप ये डेनियर का लीजिए या ये लीजिए? हाँ, हमारे पास है, हमारे वी हैव आईडिया एग्जीक्यूटिव्स है हमारे पास। आप यहाँ पे फरीद गिलानी है, आप उनको पूछ सकते हैं, तो बताएंगे आपको कौन सा डेनियर है, उनका प्राइस क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, सब कुछ हेल्प करेंगे। पांच साहब, इतनी सारी वेराइटीज की अपने रिलायंस के पास यान है, तो अभी जो आगे का विजन है वो गारमेंटिंग है, अप्रैल है, थोड़ा सारी और जो ट्रेडिशनल है सूरत का बिजनेस उससे हटके है। तो कैन रिलायंस डू समथिंग R&D ऑफ मार्केटिंग? और अगर मार्केटिंग के साथ आपका यान लेके आते हैं तो सूरत में तो आप कुछ भी लाओ, आपको 15 दिन में उसका सैंपलिंग तो करके दे देते हैं या हफ्ते में दे देते हैं। तो बिग क्वेश्चन इज व्हाट कि मार्केटिंग, तो थोड़ा सा अगर रिलायंस अगर R&D मार्केटिंग में करते हैं तो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू द इंडस्ट्री ऑफ सूरत। हिमांशु भाई, हम लोग ये ऑलरेडी कर ही रहे हैं। जैसा आज हम खाली वीवर नहीं, हम वीवर के आगे ट्रेडर, गारमेंटर, एक्सपोर्टर में जाते हैं, और जिनको जब भी बात होता है कि उनको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फैब्रिक चाहिए तो हम लोग उनके साथ, हमारे जो एग्जिस्टिंग वीवर है उनके साथ हम कनेक्टिविटी करवाते हैं। तो ये हम मतलब एज ए प्रोसेस हम लोग करवाते ही है, तो इट्स ए रेगुलर प्रोसेस करवाते हैं। बट अगर आप बोले कि 100% मार्केटिंग का राइट, तो फिर हम लूम्स भी डाल देंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आप उनको एक दिशा दीजिए। रिलायंस जैसे यान में दिशा देते हैं वैसे मार्केटिंग में भी दिशा दीजिए। 100% हम लोग देखिए जानते हैं कि आज एक्सपोर्टर को क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा, तो वो सब हम देते हैं। नहीं देंगे 100%। चेतन भाई હિમાંશુભાઈએ જે સજેશન પાંચ સાહેબ આપ્યું, આપણે કસ્ટમર સુરતમાં તો બનાવવા માટે લોકો એક એરિયા વાઇઝ પર્ટિક્યુલરલી ક્વોલિટીથી બહાર નીકળતા નથી, અને ઇન્ડસ્ટ્રીનો એટલો ગ્રોથ છે અને ફ્યુચર એટલું બ્રાઇટ નથી, કેપેસિટી વધતી જાય છે, તો હિમાંશુભાઈના સજેશન મુજબ કસ્ટમર કે ગ્રુપ વાઇઝ જે નવું થોડું ડેવલપમેન્ટ માટે કંપની કરે જ છે, ડે ટુ ડે કસ્ટમર વિઝિટ સાથે ગાઈડલાઇન્સ, પણ થોડું 5-50 ગ્રુપ વાઇઝ થોડું ગાઈડલાઇન્સ મળે કે નવું લોકો બનાવે તો સુરત શહેર ઘણું આગળ આપી શકે એમ છે, એક્સપોર્ટને ફેબ્રિક બી બનાવી શકે એમ છે। તો એ દિશામાં રિલાયન્સે થોડોક સપોર્ટ કરવો જોઈએ, જેથી કરીને સુરતને વધારે આગળ ગતિ કરવામાં हेल्पफुल થઈ શકે। कर सकते हैं राजेश भाई, आप हम छोटे छोटे ग्रुप में 20-25 ये सब ग्रुप में कर सकते हैं। दूसरा एक ये है कि हम लोग जो मार्केटिंग करते हैं ना, नॉर्मली हम हमारे कस्टमर को मिलते हैं, बट उसके आगे हम नहीं मिलते हैं। तो कस्टमर के आगे जो है, जैसा आज अगर वीवर है वो कपड़ा बेचते हैं ट्रेडर को, बट ट्रेडर आगे जिसको बेचते हैं, अगर गारमेंटर को है या आगे जो मार्केट में मंडी में बेचते हैं, उनके साथ भी उनका डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। तो हम मंडी में क्या हो रहा है वो हमको पहले से पता चलेगा। अदरवाइज आई एम टोटली ब्लाइंड कि मेरे को ट्रेडर जैसे गाइड करेंगे वही हमें करना है। तो एक स्टेप आगे भी जाना चाहिए। हम आज जैसे
ये काम हम तभी कर सकते हैं जब आज हम गारमेंटर्स या एक्सपोर्टर्स को मिलते हैं, तभी हम वीवर के साथ कनेक्टिविटी करवा सकते हैं। ये सबको करना चाहिए। थैंक यू सर फॉर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सर, एक सोच है सूरत की कि टेक्निकल टेक्सटाइल यानी 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ का ही धंधा है। इस सोच से बाहर निकलने के लिए स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ा गाइडेंस मिले कि इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी जगह है, बहुत सी छोटी छोटी है जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से, छोटे मशीनों से, जैसे बेल्ट मेकिंग और दीज आर नॉट समथिंग विच रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट, और ये बहुत काम सूरत एफिशिएंटली कर सकता है। तो उसका कुछ फीडबैक आप दे सकते हैं? चेतन भाई, 5 करोड़ से टेक्निकल टेक्सटाइल का प्रोजेक्ट बनता है, तो मतलब आप बहुत ही छोटा स्टेज से बनता है। एंड देन इसमें क्या है, देयर आर कंसल्टेंट्स अवेलेबल जो आपको टाइम की बेसिस पे आपका प्रोडक्ट बना के, आपको अप्रूवल करवा के सेट करके देगा। सो फर्स्ट थिंग इज कि हमें इच्छा होनी चाहिए कि हमें ये करना है इसमें वेंचर। थोड़ा गाइडेंस स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को। हाँ, मतलब प्रोजेक्ट अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि 100 करोड़ 200 करोड़ का है, 5 करोड़ से प्रोजेक्ट अवेलेबल है, छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल है। पान साहब, हाँ जी सर। मैं और मुंद्रा जी वही बात कर रहे थे, आपने बताया कि आपने बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटीज आपके यहाँ से बन रही है अभी सूरत में। सब लोग आपकी ये क्वालिटी जानने के बाद सबको ऐसी तो उम्मीद है कि भाई ये क्वालिटी उनको सैंपल के तौर पे उसको देखने मिले, उसका डिस्प्ले हो, और डिस्प्ले करने के बाद जो मोनोपोली सिस्टम चल रही है वो मोनोपोली सिस्टम आप छोड़ेंगे तो ही यहाँ का इंडस्ट्री का विकास होगा। मैं अगर आप सच्ची बात बताऊं, क्योंकि सभी को इंतजार तो यही है कि नहीं, आपने भले आपने नया यान बहुत बड़ा आपने इंट्रोड्यूस किया है इस टेक्सटाइल के अंदर, मगर सभी के पास इतना नॉलेज नहीं है। वो नॉलेज जैसे आपने बताया कि भाई आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स दें, हम लोग ने आगे भी एक वाटर जेट्स का और रिपेयर रूम्स का यहाँ प्रोजेक्ट बनवा के सबको दिया था कि भाई आपका इतना उनके टाइम पे, आशीष भाई के टाइम पे, तो वैसे प्रोजेक्ट्स आप बना के दें साथ में, और ये जो नई क्वालिटीज है उसका डिस्प्ले यहाँ JFRCC में करें। अगर तो आप जहाँ भी बुलाए वहाँ इंडस्ट्री आके वहाँ उसका विजिट करें और आपका यान ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ कर सके, ऐसी कुछ बात आगे बने तो ये इंडस्ट्री का ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है और कुछ नया नया उनको सीखना मिलेगा और नया यान वो लोग यूज़ कर सकेंगे। थैंक यू। तो प्रफुल्ल भाई देखिए, हम जो नया यान बनाते हैं ना उसका सैंपल वगैरह हम सब बनाते हैं हमारे ऑफिस में तो है। जैसा मैंने बताया कि JFRCC में भी हम आज कल भी डिस्प्ले में करेंगे, यहाँ पे सबको देखने को मिलेगा। तो बेसिक फैब्रिक उसका रहता है। अभी मोनोपोली में क्या है, अगर कोई मेरा वीवर कोई एक प्रोडक्ट लेके 2 साल मेहनत करने के बाद एक प्रोडक्ट बनाया तो वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो उनका एक राइट्स है अपने मेहनत से 2 साल से। आज मतलब एक प्रोडक्ट को क्लिक करने के पीछे उनका कितना टाइम, एनर्जी एंड मनी जाता है, तो वो स्पेशल उनकी प्रॉपर्टी है, वो इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी उनकी है, उसको हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं। बाकी बेसिक इसमें से क्या बनेगा वो गाइडेंस हम देंगे और क्या कर सकते हैं वो देंगे। तो दूसरे लोग भी ऐसी मोनोपोली Yes. खुद की कपड़े की बना सकते हैं। करेक्ट। सर, एक रिक्वेस्ट है कि जैसे SGC है ये कोर्स चलाते हैं छोटे शॉर्ट टर्म कोर्स, तो आपके टेक्निकल वाले और JFRCC के जो फैकल्टी है साथ में मिलकर कुछ ऐसे कोर्स डिजाइन कर दे तो जो नए एंटरप्रेनर है उनके लिए इजी हो जाएगा। तो नया प्रोडक्ट कैसे इंट्रोड्यूस करना है और कैसे उनको बनाना है, टेक्निकल नो हाउ थोड़ा आ जाए। तो एक ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो यू कैन प्लान विद चैम्बर्स प्लीज। कोई इशू नहीं है, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। हमें देखिए जहाँ पे इंडस्ट्री का हेल्प होगा वहाँ के लिए तो हम, आप बोलेंगे तो हम 5 कदम आगे चलेंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ साहब, जैसा अभी चेतन भाई ने बात करी मैं उसी को बात आगे कर रहा हूँ। सब कुछ समझते हुए भी यहाँ के जो व्यूअर्स हैं टेक्निकल टेक्सटाइल में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते। आज से 7-8 साल पहले जिन्होंने लगाया था नुकसान किया, वो सब में बात कर रही है। तो क्या आपके पास कुछ ऐसा फीडबैक है या कोई कि भाई आपने किसी को सजेशन दिया हो कि भाई आपको टेक्निकल टेक्सटाइल में जाना चाहिए, तो गए तो कितने % लोग गए और नहीं तो क्यों नहीं जा रहे, और जाने के लिए और क्या रास्ता है, थोड़ा सा उसको डिटेल आप बताएंगे तो माइंड जो सेट है उसमें परिवर्तन लाना है, ऐसा हमारा सोचना है। मैंने 5 साल तक टेक्निकल टेक्सटाइल पर सेमिनार करने के लिए बिल्कुल मना किया था।
2018 से 2013 से 18 तक टेक्निकल टेक्सटाइल को कोई काम नहीं किया। क्यों? जब देखा बंद हो गया। और जब जिस दिन से आपका जो यहाँ का क्रिएशन है, इनोवेशन है, उस दिन से टेक्निकल टेक्सटाइल में बहुत जल्दी से यहाँ पर आना चाहिए, मगर क्यों नहीं आ पा रहा है? चेतन भाई का प्रश्न ये है, थोड़ा सा आप डिटेल जरा 1-2 मिनट बताएंगे तो ज्यादा व्यूअर्स लोगों को इजी रहेगा। गिरधर जी, ये क्या है? ये नया एरिया है और ये नया रास्ते में आपको चलने के लिए तकलीफ तो ज़्यादा आएगा। और जो चीज़ इजीली सक्सेस मिल जाता है ना, वो ज़्यादा टाइम रहता नहीं है। अगर कुछ जैसा हम लोग आज कपड़े की लाइन में हैं, हमने कपड़ा मालूम है आज ये नहीं बिकेगा तो कल रुपया सस्ता करके भी बेच के निकल जाएंगे। टेक्निकल टेक्सटाइल ऐसा नहीं है। जैसा मैंने बताया कि अगर आपने बनाया और अगर वो क्वालिटी अप्रूव नहीं हुआ तो इट हैज़ जीरो वैल्यू। बट एटलीस्ट मेरे नज़र में ऐसा नहीं है कि टेक्निकल टेक्सटाइल में इन्वेस्ट करके फिर उन्होंने बंद कर दिया। अगर बंद कर दिया तो डेफिनेटली हमें देखना पड़ेगा क्यों हो रहा है। मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि टेक्निकल टेक्सटाइल का ग्रोथ बहुत अच्छा है। मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग पहले ये सोच रहे थे कि टेक्निकल टेक्सटाइल में मतलब हमारा इंडस्ट्रियल यान का सेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली मतलब हाई एंड टेक्निकल टेक्सटाइल नहीं है, दिस इज वेरी कॉमन। मतलब ये तो क्या है, वो क्या देखो, ये भेड़चाल वाली बात हो गया, वो सब लोग आ गया साथ में। आज आप जो टेक्निकल मतलब इसका कोई ये नहीं है कि इसमें इतना होना ही चाहिए। आप टेक्निकल टेक्सटाइल मतलब जो आज इवन आप देखिए फॉर एग्जांपल पीपी किट्स का आप देख लीजिए, पीपी सूट्स का देख लीजिए, इंडिया में नहीं बनता था। वी बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीपी किट्स। तो अगर वो कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। कि टेक्सटाइल मिनिस्टर आते हैं, टेक्सटाइल कमीशन आती है, बार बार प्रेशर आती है कि टेक्निकल टेक्सटाइल में आप जाइए, उसमें इतना गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज है, बावजूद इसके क्यों नहीं जा रहा है? दिस इज माई क्वेश्चन। मतलब थोड़ा आप लोग बताइए ना भाई, आप लोग क्या दिक्कत है? क्या है कि लोगों के पास आज जो टेंडेंसी है वो मनी प्रोड्यूस करने की है। आज जो भी टेक्निकल आदमी आता है ना, वो अपने उसमें ले जाता है कि मुझे इसमें से क्या सीखना है, तो उसकी वजह से वो फेल होते हैं। और फेलियर की वजह से सब लोग डर डर के आगे नहीं जा सकते। अभी एक प्रवीण भाई ने किसी डाला है नायलॉन का हाई टेनासिटी का अपना, उसको जो मशीनरी दिया वो मशीनरी उसने गलत दिया है, जो मशीनरी सप्लायर है। अभी बॉम्बे में मेरा एक चल रहा है, अभी उसको रॉ मटेरियल क्या डालने का वही मालूम नहीं है। तो वो सब चीज को हमको सीखा। मैं इसके लिए इंडिया लेवल पे काम करता हूँ। मेरा काम ही है कंसल्टेंसी देने का लोगों को। अगर है नहीं चलता है तो बंद कर दो, चल रहा है तो चलाएंगे। आप प्रश्न करिए ना, उसके लिए रिजल्ट के लिए क्या करना है? प्लीज कम द स्टेज। आइए इधर आइए। नहीं, आप तो कंसल्टेंसी करते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल का, तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। सी क्या है, देखो गिद्दा जी, हम लोग ज्यादा तक इजी काम जो है ना वो करते हैं, डिफिकल्ट काम हम करना नहीं चाहते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल इज अ डिफिकल्ट थिंग, बट आप अगर एक बार प्रोडक्ट एस्टेब्लिश किया तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपके बाजू में पड़ोसी रातों रात कोई रिलायंस का यान लेके वो कपड़ा 2 रुपया सस्ते मीटर में बेच देगा, नहीं हो सकता है। तो डिफिकल्ट, बट वंस यू अचीव तो इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, यू विल बी रिप्लेस्ड बाय समवन एल्स। रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उसमें अगर आप चल के सक्सेस मिले, और सक्सेस तो मिलेगा ही। इसमें क्या है, डेवलपमेंट का भी एक रूल है। आप अगर मैंने काफी वीवर को भी देखा, दे एक्सपेक्ट कि एक यान ले लिया, पहला कपड़ा सिंपल बैठा नहीं तो छोड़ दिया, नहीं होता है। इतना इजी होता तो सब लोग डेवलपमेंट कर लेते हैं। थैंक यू। आप 10 डेवलपमेंट करेंगे तो 2 क्लिक होगा, ये मान के चलना है। Thank you, Bansa. It was very rich question answers. Now, I request our Vice President, Sri Ramesh Bhai Vagasia, to give the vote of thanks. Thank you. On behalf of the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry, I would like to thank you, Asim Pansab, for deliberating a very detailed and lucid way the brief and detailed information so far as the yarn is concerned, especially in polyester. I hope you might have got the information and knowledge in this regard. I would like to thank you first of all Girdhar Gopal Mundra ji, who always take the initiative
to enhance the knowledge and information to be shared to the business and industry players in Surat. So thank you to him. Thank you कृष्णानी साहब जो उसने MOC किया और उस टीम में को चेयरमैन होकर के हमारे सभी बिजनेसमैनों को हमेशा यूजफुल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते इनिशिएट करते हैं। मुंद्रा जी के साथ रह करके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल हो लोग और उनका यूज करके अपना बिजनेस बढ़ा पाए। आई वुड लाइक टू थैंक यू आशीष भाई, प्रफुल्ल भाई, महेंद्र भाई काजीवाला एंड लास्टली आवर प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफिस बेयरर्स। और अंत में आप सब, आप अगर नहीं आए होते तो ये हो ही नहीं सकता था। तो आप सब है, आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल। थैंक यू।